Hello, dear student. Hope all of you are fine. Although you are not regularly watching the videos, I need to make the videos. It's my duty. But your prior duty you did forgot already few days earlier. बहुत दिन हल तुम्हारे निजर ডিউটিটো পাহৰি গৈছে ডিউ টু দিছ পেণ্ডেমিক সিচুৱেশ্যনটো ক্ৰিটিকেল হৈছে হয় বাৰু তেনেকুৱা এটা চিষ্টেমৰ লগত যদি তোমালোকে এটাচ হৈ নাথাকা দ্যাট ইজ ইউৰ স্কুল কলেজেছ not open till now, so you guys are frustrated at home. So many videos, बहुत videos di ase tomaloke lecture live lecture di ase, so you guys get frustrated. Maybe that's why you are not matlab casually loi ase bostubor like sir hote amak live class bu die tar pisot etu die hobo sir hote duty koi thakok amar nu ki jay. That's how your attitude becomes right now. But once again I am going to tell you that you have to overcome this situation. जितु मेंटल सिचुएशन हो ऐसे तुम्हालोको हिटो तुम्हालोके लीजिए ओवरकम करिब लागिब. ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हो, यू कैन डू इट, रियली यू कैन डू इट. और सबे क्लास 12 रिजल्ट कम पाइसा आरडी जूनियर कॉलेज. अभी मैं एटिया जस्ट तुम्हालोको बायोलॉजी থকা स्टूडेंटक কৈছো मैक्सिमम स्टूडेंट यार केमिस्ट्री मार्क्स कम पाइसे, केमिस्ट्री में मैक्सिमम को मार्क्स कम मिला. Few students, I have seen the marks of all the students. Few students are among the students who take the biology and mathematics both. They get quite good mark. जितो हमार टॉपर আছে हिও তেনেকুৱা केमिस्ट्री 85 ও তলত পাইছে কে 80 কিবা এটা পাইছে. But maths and biology both he got 90 plus. Biology most probably 96 and maths 92 approx. So I am requesting all of you prepare for 6 subject, not for 5th. मतलब 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमें सही सब्जेक्ट पढ़ लो. क्लास 10 तक तो पढ़े चुके हो. क्लास 10 लेकर तुम लोग पढ़ी से 6टा सब्जेक्ट. Then what's the issues now? Prepare for 6 subject. For entrance purpose you give importance in what perspective you want to go. जितो जाबो बिचारा ताते इम्पोर्टेंस दिया. फॉर योर बोर्ड एग्जाम परसेंटेज का जो बात है, क्योंकि परसेंटेज में बोर्ड सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट योर लिटरेचर जो है मॉडल MIL जो है और इंग्लिश, वो 2 सब्जेक्ट के सिवा यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट है किसी कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा 4th सब्जेक्ट आ जाएगा आसानी से, जिसमें मार्क्स कम मिल जाएगा. तो 2 सब्जेक्ट रहने से वो क्या हो गया, वो एक बेनिफिट्स हो गया. क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इस साल का जो रिज़ल्ट है उसमें मार्क्स देखो तो स्टूडेंट आर गेटिंग गुड परसेंटेज बिकॉज ऑफ मैथ्स एंड बायोलॉजी बोथ. वो दोनों में अच्छा मार्क्स मिल गया तो उसका परसेंटेज भी ज़्यादा हो गया थोड़ा. सो यू गाइस कैन फॉलो दिस ट्रिक्स टू. 2 ही सब्जेक्ट रख लो, क्या दिक्कत है? एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना पढ़ाई तो कर चुके हो क्लास 10th में 11th में, तो आप क्यों नहीं ऐसा कि एक ही सोच करना है. बाद में चूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं. परसेंटेज डज मैटर. इन few peoples are talking like that the percentage doesn't matter, it is a piece of paper. But really in reality no, percentage does matter. তোমালোকে এতিয়া যোনবোৰে টেকনিক্যাল লাইনত যাবা ঠিকে আছে. যোনবোৰ জেনেৰেলত পঢ়িব বিচাৰা গুড পাৰ্চেণ্টেজ হ'লে ভাল কলেজত এডমিশ্যন নোপোৱা. সো ইট ইজ নট দ্য 19th century, it is the 21st century. So percentage does matter. Okay, remember that word. You have to prepare for percentage too, for entrance too. Entrance और percentage दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा. Percentage does really matter. Okay, we'll do few numericals from your miscellaneous exercise. Miscellaneous का मैं बोला था कि चैप्टर खत्म हो चुका है या that was the, but on seeing your the NCERT book textbook I have seen that few more questions are left out, which is quite मतलब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है. We'll try this question to discuss in this class and officially मतलब एक क्लास हमारा ख़त्म हो चुका होगा, मतलब अभी ख़त्म हो जाएगा इस लेक्चर के बाद. सो हमारा जो चैप्टर था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दैट विल बी मतलब कवर हो जाएगा आज के लेक्चर के बाद.
ठीक है, सो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक द क्वेश्चन। फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx if y equal to 12 of 1 minus cos t comma x equal to 10 of t minus sin t. Value of the t should be lies between minus pi to pi by 2 to plus pi by 2. ये वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सो वी नीड टू फाइंड dy by dx। यहाँ से हमें dy by dx निकालना है। What type of equation is this? This is parametric type of function. यहाँ पर देखो y is a function of t, x is also a function of t. T is here our parameter. Okay. So from this and this equation I am doing directly. So dy by dt we need to find parametric कैसे करते थे याद है, हम लोग कर चुके हैं। That's why directly I am doing here. So dy by dt क्या हो जाएगा, 12 तो ऐसे ही कांस्टेंट है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाता है, cos का माइनस साइन आ जाता है sin t, ओवरऑल इट विल बी 12 sin t, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमें क्या मिल गया, dy by dt मिल गया। तो अभी हमें क्या करना है, dx by dt निकालना है। सो यहाँ से देखो दिस x को मतलब t के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है। सो dx by dt इट विल बी 10 ऑफ t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, साइन का cos t होगा, दैट विल बी 10 ऑफ 1 माइनस cos t, ऐसे ही रहने देते हैं। सो आ गया। बट व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड dy by dx। पैरामेट्रिक dy by dx कैसे निकालते थे, dy by dt डिवाइडेड बाय चेन रूल के हिसाब से निकालते थे, वो दिखा दिया था when we discuss the parametric form of equation, differentiation of parametric form of equation, then we already told that dy by dx should be equal to dy by dt divided by dx by dt. Okay, put the value of dy by dt here, that is 12 sin t, and ये तुम्हारा 10 of 1 minus cos t, ये हो गया 12 sin t डिवाइडेड बाय 10 of 1 minus cos t। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो एज इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा। सो यहाँ क्या आ जाएगा 12, आई थिंक यहाँ तक हो चुका है तुम लोगों का, ये रहे तो कंफ्यूज हो जाओगी, तो रफ कर दिया मैंने। 12 sin t यहाँ देखो अच्छे से, 12 sin t डिवाइडेड बाई 10 ऑफ cos t, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2 साइन ऑफ t बाई 2 cos ऑफ t बाई 2, लिख सकते हैं आराम से। sin t को sin 2t कंसिडर करो, 2t का जो फॉर्मूला है 2x का sin 2x का, दैट इज 2 sin x cos x, वही अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर भी सेम करो, 1 माइनस cos 2t क्या होता है 2 sin स्क्वायर t। सो यहाँ तो है नहीं 2t, सो t बाई 2 हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर t बाई 2। कैंसल दिस 2 and 2, यहाँ 2 से कैंसिल कर दो 6 5 आ जाएगा, यहाँ साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा 6 बाई 5 cos ऑफ t बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ t बाई 2, cos ऑफ t बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ t बाई 2, इससे आ जाएगा 6 बाई 5 cot ऑफ t बाई 2, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है cot t बाई 2। It is not visible. Okay, that is, your result will be 6 by 5 cot t by 2 आ जाएगा 6 by 5 cot t by 2। I think now it is visible, 6 by 5 cot t by 2। हो गया क्वेश्चन।
और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस if x minus a square plus y minus b square equal to c square for sum c greater than 0, for sum c greater than 0, prove that क्या प्रूव करना है, 1 प्लस dy by dx square whole to the power 3 by 2 divided by d square y by dx square is a constant। इसको कांस्टेंट दिखाना है। is a constant independent of a and b, independent of a and b। क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से रीड कर लेना पहले, क्या है क्वेश्चन देख लो। और क्वेश्चन इज दैट इफ x minus a square plus y minus b square equal to c square for some c greater than 0, we need to prove that 1 plus dy by dx whole square second bracket to the power 3 by 2 divided by d square y by dx square is a constant। इसको constant दिखाना है and independent of a and b, दोनों दिखाना है। constant भी होना चाहिए, independent of a and b भी होना चाहिए। So to prove this one as a constant and independent of a and b, first we need to find dy by dx and d square y by dx square. We will separately find that one. Differentiating differentiate x minus a square plus y minus b square equal to c square with respect to x। इस इक्वेशन को x के हिसाब से डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होता है। ये वाला होल स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, 2 ऑफ x माइनस ए, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस ए विल बी दैट इज 1 प्लस 2 ऑफ y माइनस b, डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस b विल बी dy by dx दैट इज इक्वल टू 0। c इज अ कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा आसानी से। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 विल गेट कैंसल, so we can find dy by dx from here onwards, that is minus of x minus a divided by y minus b। a हो गया हमारा dy by dx। so इसको क्या करो, again differentiate करो with respect to x, you will get d square y by dx square। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको एक इक्वेशन लिख के रखो, इक्वेशन 1 सपोज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y माइनस बी स्क्वायर, y माइनस बी डी डी एक्स ऑफ दिस टर्म, इसको हम एक माइनस रख लेते हैं कॉमन, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए इज 1 माइनस, अब क्या हो जाएगा x माइनस ए इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। अभी तुम लोगों को सब आता है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। सो हो गया, यहाँ देखो व्हाट वी आर गेटिंग, वाई माइनस बी स्क्वायर माइनस आ गया वाई माइनस बी, यहाँ पर माइनस एक्स माइनस ए इंटू, अभी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस पुट करना है, माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी था। आई थिंक यू गेट अप टू दिस, यहाँ तक तुम समझ चुके हो डबल डिफ्रेंशिएशन। यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ, आई थिंक दिखेगा,
सो वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम ले लो तो वाई माइनस बी क्या आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल, सो यहाँ पर माइनस था एक ऑलरेडी, यहाँ पर वाई माइनस बी होल स्क्वायर है, माइनस है ऑलरेडी। टेक एलसीएम वाई माइनस बी, ये वाई माइनस बी जो नीचे है उसको एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस बी स्क्वायर, ये वाला एक्स माइनस है इंटू एक्स माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, दिस माइनस एंड दिस माइनस इट बिकम प्लस, सो इट बिकम बट इट्स नॉट विजिबल ना। I think now it is visible, the board, this part is not visible. So y माइनस बी जो है, यहाँ पर देखो एलसीएम लेने के बाद ये वाला आ जाएगा y माइनस बी, यहाँ पर y माइनस बी था नीचे आ जाएगा y माइनस बी क्यूब, यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। ये हमें मिल गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स भी मिल चुका है, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। नाउ वी नीड टू चेक दिस वन, दिस वैल्यू जो निकालने को दिया था, मैं साइड में लिख के रखता हूँ। वो याद है डी वाई बाई डी एक्स है माइनस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी, वो था डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर नाउ वी विल गेट टू दिस वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो अभी क्या पुट करना है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स था तुम्हारा माइनस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो गया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स वहाँ तो दिख रहा है, माइनस ऑफ वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी क्यूब। दैट इज इक्वल, यहाँ देखो इसको स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस तो प्लस ऐसे ही हो जाएगा, स्क्वायर करके एलसीएम ले लो तो वाई माइनस बी स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस तो ऐसे प्लस हो जाएगा स्क्वायर के बाद एक्स माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी क्यूब। अभी क्या कर दो, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये वाला वैल्यू अच्छे से चेक किया करो, क्या है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय इसको भी माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी क्यूब, सो वाई माइनस बी क्यूब। यहाँ देखो अभी पावर 3/2 कर दे तो ऊपर आ जाएगा सी क्यूब, नीचे आ जाएगा वाई माइनस बी क्यूब इंटू, इसको तो उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई लिखने से, वाई माइनस बी क्यूब बाय माइनस सी स्क्वायर,
So y minus b cube will be get cancel out. So remaining will be minus of c, which is constant and independent of, which is constant and independent of x and y. So a वाला कांस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सॉरी ए एंड बी, नॉट एक्स एंड वाई, हमें ए एंड बी का कांस्टेंट दिखाना था क्योंकि यहाँ पर ए एंड बी का टर्म कुछ नहीं रहा, ओनली सी रहा. ओके, लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, sin a cos b plus cos a sin b, deduce the formula for cos of a plus b by using derivatives. ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, इससे हमें cos of a plus b का मतलब जो फॉर्मूला होता है वो निकालना है by using differentiation. So पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो एक बार. sin of a plus b equal to sin a cos b cos a sin b. यहाँ पर जो a and b है, a and b are not a constant here, this will be variable. So differentiate both sides. Both sides with respect to x. x के हिसाब से दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी का होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी. as this a and b are not a, so ddx of a plus b not a constant, तो ये हो जाएगा a plus b आ जाएगा इक्वल टू sin a cos b. सो क्या हो जाएगा? a इंटू बी, u इंटू बी फॉर्मूला लगा लो, sin a का कांस्टेंट ले लो, sin a माइनस ऑफ sin b db by dx, क्योंकि b इज ए वेरिएबल. सो प्लस, तो फर्स्ट टर्म हो गया. सेकेंड टर्म के लिए साइन a को cos b कांस्टेंट रखो, साइन a का क्या हो जाएगा? cos a एंड dA by dx आ जाएगा. आई थिंक यू गाइस गॉट इट. dA by dx क्यों आ गया? a हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का हो गया. अभी ये वाला टर्म का सेम तरीके से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे. मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया. प्लस ए वाला cos a को कांस्टेंट ले लिया मैंने फर्स्ट में, sin b का निकाल लिया, cos b होता है. एज वी टेक द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओनली sin b, सो db by dx आ जाएगा. प्लस अभी sin b को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, cos a का निकालेंगे तो माइनस ऑफ sin a डिफ्रेंशिएशन एंड dA by dx. यहाँ देखो dA by dx, यहाँ पर dA by dx आ रहा है, यहाँ पर भी dA by dx आ रहा है, यहाँ पर dB by dx आ रहा है. सो dA by dx को कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा? देखो cos a cos b माइनस sin a sin b. Similarly, if you take common dB by dx, I think you will get same term cos of. टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट गया था फ़ोन, थोड़ा दिक्कत हो रहा था. सो यहाँ पर dA by dx कॉमन ले सकते हो फ्रॉम दिस टू टर्म, रह जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b. और फ्रॉम दिस टू टर्म यू कैन टेक कॉमन dB by dx. अच्छे से देखो cos a cos b माइनस sin a sin b. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन टेक कॉमन cos a cos b माइनस sin a sin b कॉमन ले सकते हो. वो क्या हो जाएगा? dA by dx रह जाएगा प्लस dB by dx रह जाएगा. ओके, और इसको तुम ये डायरेक्टली काट सकते हो क्योंकि dA by dx प्लस dB by dx आ जाएगा स्प्लिट कर देने से, दिस टर्म ओनली. सो रहेगा तुम्हारा क्या? cos of a plus b, therefore cos of
ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, ये हो गया तुम्हारा फाइनल डिराइवेशन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी फार्मूला का जो डिराइवेशन करने को दिया था वो हो गया। बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, चेक द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इफ y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एल एच एक्स एल एम एन ए बी सी, फाइंड y डैश निकालने को दे दिया डिटर्मिनेंट में। सो हम कैसे कर सकते हैं, पहले यू स्प्लिट द डिटर्मिनेंट, इवेलुएट कर लो, डिटर्मिनेंट जो है उसको इवेलुएट कर लो। वी नो द इवेल्यूएशन प्रोसीजर। सो एफ एक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस रो कर लो। एफ एक्स क्या हो जाएगा, एम सी माइनस बी एन माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, इसको सोर के दिस टू एल सी माइनस ए एन, इट विल बी सी प्लस एच एक्स, ये वाला रहेगा तो b इंटू एल माइनस ए इंटू एम। तो सारा हो गया इवेलुएशन। अभी डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डैश। यहाँ देखो दिस u इंटू बी, लेकिन ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो u इंटू बी नहीं करना चाहिए, तो कांस्टेंट को आगे लिख लो आराम से। सो एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम एल सी माइनस ए एन जी डैश एक्स प्लस बी इंटू एल माइनस ए एम एच डैश एक्स। दिस एंड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इक्वेशन? ओनली एफ एक्स के जगह एफ डैश एक्स आया है, जी एक्स के जगह जी डैश एक्स आया है, एंड एच के जगह एच डैश एक्स आया है। सो यू कैन राइट दिस इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म 2। यहाँ पर एफ डैश एक्स लगा लो, जी डैश एक्स एच डैश एक्स, वो सेम रहेगा बाकी L11 ABC। सो इट इज़ आवर रिजल्ट। सो यहाँ से कहीं पर भी तो डिटर्मिनेंट फॉर्म का डिफरेंशिएट निकालना है तो ओनली डिफरेंशिएट मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर जस्ट जो वेरिएबल टर्म है उसका डिफरेंशिएट निकालो, हो जाएगा आसानी से। ओके, आई होप यू गाइस गेट इट। ओके, थैंक यू।